Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. Today we will start our lecture 4. Let's have a recap of the previous lecture. In the previous lecture we have seen how we can represent 32-bit floating point number in computer systems. We see the standard ANSI 754 which defines the how we can which defines the 32-bit floating point format. Uh, in this standard, we have 1 bit for sign bit, 8 bits for exponent, and 23 bits for mantissa. Exponent represented in this system as biased 127. We have seen some examples of the representation. We have biased value of 127, so the largest positive value that can be represented in this system is 2 raised to power 127, and the smallest negative number is 2 raised to power minus 126. The numbers 0 can be represented having zeros in all bits of the exponent, and we can represent infinity by having all ones in the exponent field. Arithmetic operations on floating point numbers, we can perform addition, subtraction, multiplication, and division. 64-bit floating point number, in this standard we have 1 bit for sign bit, 11 bits for exponent, and 52 bits for mantissa, and the exponent represented as bias 1023. How do systems differentiate between number representation, defining and declaring data types? Then we have hexadecimal number system that has base 16 number system. The different patterns of hexadecimal number system varies from 0 to F. After 9 we have A, B, C, D, E and F, used to represent large binary values. This is how we count in hexadecimal number system. Binary to hexadecimal and hexadecimal to binary conversions. We have gone through the hexadecimal conversions, direct methods and indirect methods. Then we perform hexadecimal addition, and we see that the carry generated has a weight of 1, but if we borrow from another digit, the borrow weight is of 16 in subtraction. Today we will go through another system, that is octal number system. Okay, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे सिस्टम के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कैसे हम लोगों ने एक बिट जो है वो साइन के लिए रखी है, 8 बिट्स जो है वो एक्सपोनेंट के लिए रखे हैं और 23 बिट्स जो है वो मल्टीजा पार्ट के लिए रखे हैं। और 32 बिट जो फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम में था, बायस वैल्यू जो है वो 1 to 7 थी। इससे पहले हमने देखा था कि बायस वैल्यू क्या होती है, साइन नंबर्स क्या होते हैं, अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। अरिथमेटिक बाइनरी में हम टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज करते हैं, एरर्स को हम कैसे दूर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो 32 बिट सिस्टम में बायस वैल्यू 1 to 7 है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट आ सकती है वो 2 raised to power 127 और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट 2 raised to power minus 126 के तौर पे हम ले सकते हैं, क्योंकि बायस वैल्यू 1 to 7 है। -126 plus 1 to 7 gives us 2 raised to power 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को देखा था। ठीक है, और हमने कहा था अगर एक्सपोनेंट आपके पास 0 होता है तो इसका मतलब है
कि वो नंबर आपके पास 0 है, और एक्सपोनेंट में सारी फील्ड्स अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपके पास इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, हमने देखा था, ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस भी की थी। फ्लोटिंग पॉइंट की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत इजी है, कोई इतना मसले वाली चीजें नहीं है। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जो डेसिमल नंबर है उसका एक्सपोनेंट सेम रखना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए अगर मुझे 3000 प्लस 200 करना है, ठीक है, तो अब फ्लोटिंग पॉइंट में इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 10⁻³ और 200 को मैं लिखूंगा 0.2 इंटू 10⁻², सॉरी 10⁻³ तो अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3.2 इंटू 10⁻³। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड में ऐड किया, फ्लोटिंग पॉइंट वही रहेगा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड अप कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से 3.2 इंटू 10⁻³ जो कि आपके पास आप अगर इस पॉइंट को हम वापस अपनी जगह पे रखें तो आपके पास 3200 बन रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 3 जीरो इंसर्ट करने हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 3200 आपके पास वैल्यू आ रही है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही रूल होता है कि आप लोगों को एक्सपोनेंट दोनों का बराबर करना पड़ता है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास अगर 3 इंटू 10⁻³ और 2 इंटू 10⁻² को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड अप कर दूंगा, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 6 इंटू 10⁻5 बन जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन में भी इसी तरह, मगर डिवीजन में एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सपोनेंट आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मेंटीजा पार्ट जो है वो मेंटीजा से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में सिस्टम में हमने देखा था कि कैसे हम लोग साइन बिट 1 करते हैं, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स और 52 बिट्स जो है वो मेंटीजा पार्ट के लिए, और जो बाइस वैल्यू है 64 बिट के लिए वो 1023 है। अब नंबर सिस्टम कैसे, हाउ डू सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन नंबर रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम कैसे नंबर सिस्टम में एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। हम लोग डेटा टाइप्स को डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम C के अंदर इंट A डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसको अगर वैल्यू असाइन करनी है इंट A इज इक्वल टू 0 हम कर लेते हैं। इसी तरह हमने फ्लोट डिफाइन करना है तो हम फ्लोट B इज इक्वल टू 2.2 और करेक्टर डिफाइन करना है तो CHAR करेक्टर C इज इक्वल टू A। तो ये चीजें हम लोग करते हैं जब हम लोग सिस्टम को इस तरह पता लगता है कि हमारे पास ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये फ्लोट डेटा टाइप है और ये करेक्टर डेटा टाइप है। तो सिस्टम जो है वो इन कीवर्ड्स के थ्रू डेटा टाइप्स को डिफरेंशिएट करता है। इसके बाद हमने देखा था कि हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर क्या होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर बेस 16 नंबर सिस्टम है, बहुत बड़ी लार्ज बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। हमारे पास 0 से F तक 15 डिफरेंट पैटर्न्स है। 9 के बाद हमारे पास A, B, C, D, E और F आता है। 9 तक हमारे पास 0, 1, 2 अप टू 9 तक ये डेसिमल वैल्यूज तक सेम रहती है। ठीक है, फिर ये हेक्साडेसिमल की काउंटिंग देख लें, डेसिमल 0 0 आ रहा है, 9 9 आ रहा है, सिर्फ 10 जब हुआ तो आपके पास A, B, C, D, E, F अप टू 15 तक आ रहा है। हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी देखी थी कि जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो ज्यादा इजी है,
कि ये मेरे पास एक बाइनरी है, इसको मैंने 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन 4 पार्ट्स की मैंने बाइनरी लिख ली। ये 6 की बाइनरी है, ये 9 की बाइनरी है, ये मेरे पास आ जाती है 8 + 2 10 + 11। 11 मेरे पास बी होता है, ये मेरे पास 6 आ रहा है, और ये मेरे पास डी जो है ये आ रही है 8 + 4 12 + 1 13। तो 13 की वैल्यू डी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये D6B96 हेक्साडेसिमल में बनेगा इस बाइनरी वैल्यू का। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 1 की बाइनरी लिख दी, D की बाइनरी लिख दी, और F की बाइनरी 15 की बाइनरी लिख दी है। तो ये हम डायरेक्ट हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अब इस बाइनरी से मैं ये नंबर अगेन कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल में, ठीक है। 15, ये मेरे पास आ रहा है 9, सॉरी ये मेरे पास आ रहा है 8 + 4 12, और 1 13, 1 और 3। तो 1 5 से 1 3 1 3 नंबर बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो मेथड्स है वो इजी है, बजाय डायरेक्ट मेथड्स को आप सम ऑफ वेट आप 16 मल्टीप्लाई बाय 0 + 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 की पावर, तो वो हम काम करते हैं। और जब हम हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो रिपीटेड डिवीजन बाय हमें 16 करनी पड़ती है, और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसी तरह हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी से हमने डेसिमल वैल्यू लिखी। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं ये उससे काफी इजी है। फिर हमने हेक्साडेसिमल एडिशन के बारे में बात की थी कि जब हम हेक्साडेसिमल की एडिशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जब कैरी जनरेट होता है उसका वेट सेम रहेगा। अगर 26 कैरी 2 से 26 वैल्यू आ रही है तो 6 रहेगा, 2 आपके पास कैरी में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल में सबट्रैक्शन में मुझे बोरो लेना पड़ता है तो बोरो का वेट हमारे पास 16 होता है, क्योंकि बेस 16 नंबर सिस्टम है। तो जब आप बोरो करोगे तो आपको बोरो का वेट 16 आएगा। आज हमने स्टार्ट करना था ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास एक बेस 8 नंबर सिस्टम है। बेस 8 नंबर सिस्टम में जो वैल्यूज हैं वो 0 to 7 आ रही हैं हमारे पास, 0 to 9 नहीं है, 0 to 7 आ रही है। अच्छा, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम क्यों यूज होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम बाइनरी जो नंबर है उसको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट कॉमनली यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल सिस्टम आ गया था तो अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट्स लेते थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 3 बिट्स लेंगे, क्योंकि बेस 8 जो है वो आपके पास 2⁻³ है, ठीक है। तो आप 3 बिट्स के चंक्स बना लोगे। अब ये अगर मैं देखें 3 बिट्स के मैंने बना लिए और ये 001 आ जाएगा आखिर में, ठीक है। तो 110 मेरे पास 6 की वैल्यू है, 0000 आ गया, अगेन 100 मेरे पास 4 आ गया, 101 मेरे पास 5 आ गया, और 001 मेरे पास, तो 15406 नंबर आपके पास बन रहा है ऑक्टल में, ठीक है। बाइनरी में ये है। डेसिमल में आप देख रहे हैं तो आपके पास और आपका जो नंबर है वो डिफरेंट बनेगा, ठीक है। ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट बाइनरी नंबर, ठीक है। तो हम लोग ऑक्टल जो डिजिट्स हैं वो 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेसिमल 8 रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिजिट ऑक्टल। डेसिमल में 8 को जो है वो हम लोगों को ऑक्टल के 2 बिट्स में यानी 2 ऑक्टल डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। जो 8 वैल्यू है वो आपके पास ऑक्टल में 10 होगा, ठीक है। ऑक्टल का 10, डेसिमल का 8 रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 7 है ना, 7 के बाद 8 नहीं है, तो 9 के लिए आपके पास 7 के बाद अगर 8 लेके आना है तो ऊपर जो 01 है, पहले 0 की कॉम्बिनेशन होगी तो अब 10 है, 1 1 1 2 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो ऑक्टल में हम इस तरह से 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी 8 से आगे, डेसिमल 8 से आगे के नंबर को, और अगर इससे भी ज्यादा आते हैं तो फिर हम 3 डिजिट्स में चले जाते हैं। ये कन्वर्जन देख लें, 0 0
0 है 7 तक आपके पास सेम आ रही है, ठीक है। डेसिमल का 8, ऑक्टल का 10 है, 9 ऑक्टल का 11 है। इसी तरह डेसिमल का 16, ऑक्टल का 20 आ रहा है। तो ये इस वजह से आ रहे हैं कि वो आपके पास पैटर्न रिपीट्स होते हैं, ठीक है। हम ऑक्टल में काउंट कर रहे हैं, हमारे पास 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है ऑक्टल में, ठीक है। जब भी ऑक्टल में मेरे पास 7 को हम पहुंचेंगे, ठीक है, इस केस में देख रहे हैं हम 7 को पहुंचे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास 20 आ गया, ठीक है, जो नेक्स्ट पैटर्न के साथ आ गया। तो ऑक्टल में हमारे पास 7 से आगे हमने 8 पे नहीं जाना, बल्कि हमने वापस उसी नंबर से पैटर्न के हिसाब से और नेक्स्ट डिजिट्स बनाने हैं। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड ऑक्टल से हम बाइनरी में करें, बाइनरी से हम डेसिमल में करें, और डायरेक्ट मेथड जो है वो सम ऑफ वेट्स है, ठीक है। अगेन इनडायरेक्ट मेथड इजी है, और इसी तरह डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में इनडायरेक्ट मेथड ये है कि डेसिमल से हम बाइनरी में करें और बाइनरी को हम ऑक्टल में कर लें, और दूसरा जो मेथड है वो रिपीटेड डिवीजन बाय 8 का मेथड आ जाता है। हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने ये 16 और ये देखे हैं कि हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो इजी है, ठीक है। फिर ऑक्टल एडिशन में अगेन कैरी जो जनरेट होगा उसका वेट वही होगा जो कैरी जनरेट हो रहा है, मगर जब हम बोरो करेंगे तो ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन में बोरो का वेट 8 आ जाएगा। अब कन्वर्जन देख लें, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको मैंने 3 के चंक्स में लिख लिया, ठीक है, 3-3 बिट्स के उसमें बना लिया। तो अब इन 3-3 बिट्स को अलग करें तो आपके पास ये चीज आ रही है, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल है। अब इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये ऑक्टल में 3265 626 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक और एग्जांपल ये है, इसको मैंने अगर किया तो ये है, और इसको मैंने फिर 101 011 1011 और लास्ट में जो 1 बचा था उसके शुरू में मैंने 2 जीरोस अपेंड करके इसको 3 बिट बना गया है ताकि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो, और उसके बाद मैंने नंबर लिखा तो मेरे पास 15331 नंबर आ रहा है। ये ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 7 से ऊपर का नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगेन ऑक्टल टू बाइनरी, मैंने 6 का ऑक्टल लिखा, 2 का लिखा, 7 का लिखा और 1 का लिख लिया, ठीक है। सम ऑफ वेट मेथड हमें अब अगर मुझे ये मेरे पास ऑक्टल नंबर है, इसका मुझे डेसिमल नंबर निकालना है, तो मेरे पास डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में अगर आप देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 3, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है। इसी तरह अगर मुझे डिवीजन करना, दोबारा डेसिमल से ऑक्टल नंबर निकालना है तो मुझे रिपीटेड डिवीजन बाय 8 करनी है, ठीक है। इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मैंने इधर लिख दिया, जो क्वोशंट आएगा वो मैं नीचे ले आया, दोबारा इसको डिवाइडेड बाय 8 किया तो मेरे पास जो क्वोशंट आया 32, रिमाइंडर 3 आ गया। 32 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8, ये सॉरी ये बीच में एक स्टेप मिस हो रहा है, ठीक है। 32 को मैं 8 पे डिवाइड करूंगा तो 8 4 जार, बल्कि ये मेरे ख्याल वैल्यू गलत लिखी हुई है, 32 डिवाइडेड बाय 8 होगा, ठीक है। तो 8 4 जार 32 होता है, ठीक है। 8 4 जार 32 आ गया, 4 मेरे पास क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर 0 है, फुली डिवाइड हो रहा है तो 4 इधर आ गया। अब 4 8 पे डिवाइड नहीं होता, हम इस 4 को यहाँ पे क्वेश्चन में 0 करके 4 डायरेक्ट इधर लिख लेते हैं। अब जो मेरे पास बाइनरी बनेगी वो बनेगी जो मेरे पास डेसिमल बनेगा, सॉरी 4037 डेसिमल सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। 2079 जो है वो मेरे पास, सॉरी नहीं मैं उल्टा बोल गया हूँ, 2079 मेरे पास डेसिमल है, 4037 मेरे पास ऑक्टल है, और इस केस में 4037 मेरे पास ऑक्टल है, ठीक है, और 2079 मेरे पास डेसिमल है। देख लें कि डेसिमल में मेरे पास 9 एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्टल में मेरे पास कहीं 8 से 7 से ऊपर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो ये सबसे बड़ी पहचान है ऑक्टल की, और डेसिमल में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब एग्जांपल देख लें कि कैरी आपके पास जो जनरेट हो रहा है वो 1 हो रहा है। 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। 0 + 7 7 आ गया। 6 + 7 आपके पास 6 + 7 14 होता है, ठीक है। सॉरी 6 + 7 13 आएगा। अब 13 जो आ रहा है ऑक्टल में, 13 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक मिनट में थोड़ा सा इसको 760247771 हम इस तरह से इसको करते हैं। 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। 0 + 7 मेरे पास 7 आ गया। 6 + 7 6 + 7 क्या होगा? 6 + 6 12 13 13 आ रहा है, ठीक है। और एक मिनट में यहाँ पे इसको लिखता हूँ 6 + 7 = 13 और 7 + 4 मेरे पास 12 आएगा और एक सॉरी 7 + 4 मेरे पास 11 आएगा और एक जो कैरी जनरेट होगा उससे ये 12 आएगा। तो 6 + 7 = 13 डेसिमल का 13 है ये, ठीक है। जो कंफ्यूजन हो रही है ना यहाँ पे 5 कैसे आ गया 13 है, वो ये है कि डेसिमल का 13 है। डेसिमल का 13 ऑक्टल का 15 बनेगा। अगर मैं वापस आपको लेके जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये डेसिमल का 13 ऑक्टल का 15 होगा, ठीक है। और डेसिमल का 12 ऑक्टल का 14 होगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि 13 और 14 12 जो है 14 है, 13 जो है 15 है। अब हम वापस उसी जगह जाते हैं, ठीक है। 6 + 7 13 ये होगा ऑक्टल में 15 के बराबर। तो 15 के बराबर होगा तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, ऑक्टल का, और 1 यहाँ कैरी कर दिया। अब 7 + 1 8 8 + 4 12 ऑक्टल का 12 जो है वो सॉरी डेसिमल 12 ऑक्टल 14 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ तो मेरे पास 14573 आएगा। दो ऑक्टल नंबर्स को मैंने ऐड किया है, ठीक है। ऑक्टल नंबर में याद रखें 8 से ऊपर का नंबर नहीं एग्जिस्ट करता। अगर 8 से ऊपर का नंबर कोई आता है तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो डेसिमल का 8 है और ऑक्टल का वो 10 है, ठीक है। डेसिमल का 8 ऑक्टल का 10 आता है। इसी तरह 9 जो है वो ऑक्टल का 12 आ रहा है। तो ये चीजें आपको बैक जाके जो हमारे पास जो टेबल है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। 8 ऑक्टल का 10 है, 9 11 है, 10 12 है, 11 13 है, ठीक है। 12 के बाद 13 है, 12 14 है, 13 15 है, अप टू 15 17 है। और ऑक्टल का डेसिमल का 16 जो है वो ऑक्टल 20 के बराबर है। तो डिफरेंस आप देख लें 8 + 3 8 + 2 सॉरी 8 + 2 10 है, 9 + 2 11, 10 + 2 12, 15 + 2 17। और जब 17 से हम ऊपर गए हैं तो 20 16 + 4 20 आ रहा है, ठीक है। जब आप 7 पे पहुंचो तो 2 पहले यहाँ 2 था, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 4 वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है। अगेन जिस वक्त आप 27 से वापस 27 पे आप जाओगे तो 24 और 30 के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो वो 2 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि एक 2 डिजिट्स का में कैसे आपके पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये चीजें आपने टेबल से इसमें टेबल में ऑब्जर्व आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको कहा था जब आप बोरो करोगे तो बोरो का वेट आपके पास 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बात की थी कि बोरो का वेट आपके पास 8 होगा। हम वापस जाते हैं, ठीक है। 2 में से 1 निकाल दिया, सिंपल। इसको मैं जरा 7602 ऑक्टल नंबर है, 7 से ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 4771 2 में से 1 गया, 1 आ गया।
0 में से 7 हम नहीं निकाल सकते, हमने यहां से एक लिया, एक बोरो लिया, ठीक है। एक जो बोरो लिया उसका वेट आपके पास है 8। अब 8 में से 7 गया मेरे पास, यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ 5 है, तो 5 के लिए मैंने यहाँ 7 से बोरो लिया, तो 7 के पास 6 बच गया, और यहाँ पे आ गया 8 प्लस 5। 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। 8 प्लस 4 12, सॉरी ये 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 आता है। ये मेरी मिस्टेक है। 8 प्लस 5 आपके पास 13 आता है। अब 13 में से 7 निकालें तो आपके पास 6 बचेगा, ठीक है। 7 प्लस 7 14 होता है, और एक और कम कर ले तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब 6 में से 4 गया तो मेरे पास 2 आ गया, तो इस तरह 2 6 1 1 मेरे पास ऑक्टल में इन दो ऑक्टल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 2611 बचता है, ठीक है। तो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से कर सकते हैं। कुछ इनके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जिसमें एक्सेस कोड्स हैं, बीसीडी कोड्स हैं और ग्रे। एक्सेस कोड हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम में देखा है, ठीक है। एक्सेस कोड में आपको पता है कि हम एक बायस वैल्यू को ऐड अप कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें हमारी ये डिस्कशन रहेगी थी कि ये हम बायस वैल्यू को ऐड करते हैं तो उससे नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल से हम बात करते हैं। तो वैसे अगर देखिए एक्सेस कोड में क्या होता है, एक बायस वैल्यू बाइनरी कोड के अंदर ऐड अप हो रही है, ठीक है। लैब के अंदर आप परफॉर्म करोगे, एक्सेस 3 कोड को आप इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। लैब के एक्सपेरिमेंट में आप एक्सेस 3 कोड को इंप्लीमेंट करोगे। अच्छा, नॉर्मली ये जो एक्सेस कोड होते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम यूज करते हैं एक्सपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हमने बायस 1 to 7 देखा था, ठीक है। तो एक्सेस 1 to 7 कोड था। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सेस 8 कोड की, ठीक है। जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि एक्सेस कोड को हम क्यों यूज कर रहे थे। एक्सेस 8 कोड की एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप डेसिमल में देखो, ठीक है, मैं टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हूँ, मैं अनसाइंड की फॉर्म में नहीं हूँ। जब मेरे पास जीरो है तो मेरे पास 0 0 0 है, ये जीरो है, ये जीरो नंबर हो गया, जो बता रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5 अप टू 7, 8 पे अगेन 7 तक आ गए। अब जीरो से हम -1 पे जा रहे हैं तो 1 1 1 आ रहा है, 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0, यानी ये जो पैटर्न है ये कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है आपके पास, ठीक है। 1 0 0 से कोई रेगुलर एक फॉर्म में पैटर्न नहीं बन रहा। जबकि मैं एक्सेस 8 कोड्स को देखता हूँ, ठीक है। 7 मैक्सिमम 7 वैल्यू है तो हम एक्सेस 8 कोड देखते हैं। 0 प्लस 8 8 8 की बाइनरी आ रही है, ठीक है। 0 1 प्लस 8 9, यहाँ पे मेरे पास 9 की बाइनरी आ रही है। इसी तरह ये 10 की 11 12 13 14 और 15 एक्सेस 8 कोड है ना। 7 प्लस 8 15, 4 बिट में है तो हम मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं, ठीक है। 10 9 8 आ गई, 0 में 8 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अगर आप इस सिस्टम की एक्सेस सिस्टम की खूबसूरती देखें तो जो लोएस्ट नंबर है, ठीक है, वो मेरे पास -8 है। 4 बिट में हमने बात की है कि हम -8 से +7 तक जा सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज जो है वो -8 टू +7 है 4 बिट्स के लिए। तो अब हम एक्सेस 8 कोड में अगर देखें तो -8 को हमने रिप्रेजेंट किया 0 से, ठीक है। -8 प्लस 8 आपके पास 0 होता है, -8 प्लस -7 प्लस 8 1 2 3। तो अब आप देखिए जो नेगेटिव से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, -8 -7 -6 -4 -4 से -3 -2 -1, तो मैं एक रेगुलर पैटर्न में हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगेन 0 आ गया, इसके बाद मेरे पास 0 आ गया, ठीक है।
इसके यानी जो 7 पे जब मैं पहुंचा हूँ, 7 का मतलब ये होगा कि मेरे पास -1 है। 8 का मतलब ये होगा कि मैं वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा हूँ। फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस कोड एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, जबकि जो टूस कॉम्प्लीमेंट है वो उसका एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से और पैटर्न आएगा, यहाँ से और पैटर्न आएगा। तो एक्सेस कोड है वो, उसकी एक खूबसूरती है कि वो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज को यूज करते हैं नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। जब हमें डेसिमल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एक्सपोनेंट को करना होता है तो हम ये एक्सेस कोड्स वगैरह देख लेते हैं। एक्सेस 3 कोड, हर कोड की अपनी एक एप्लीकेशंस है। तो ये एक नंबर सिस्टम है एक्सेस कोड। ठीक है, एक्सेस कोड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम आ रहा है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड। बाइनरी कोड टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट 0 to 9। बाइनरी कोडेड BCD में जो आपके पास डेसिमल डिजिट 0 to 9 तक होते हैं, जो 0 से हम 9 तक देते हैं। ठीक है, यूज बाय डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्प्ले। जो आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, ये उसके लिए यूज होते हैं। आप लोगों ने डिजिटल वॉचेस तो देखी हुई है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास अक्सर मस्जिद में आप जाते हैं, हमारे पास डिजिटल वॉचेस बनी बनी हुई होती हैं, डिजिटल डिस्प्लेज होते हैं इस तरह से कि जिसमें टाइम आप देख रहे होते हैं। ठीक है, अब उन डिजिटल डिस्प्लेज में आप देखो कि 9 से ज्यादा ऊपर की वैल्यू कभी भी डिस्प्ले नहीं हो रही होती है। 10 के लिए मुझे 2 डिस्प्लेस चाहिए होती है। तो जो वो डिस्प्ले होता है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसमें मुझे अगर 0 से मैं 9 तक ही जा सकता हूँ, इस डिस्प्ले के अंदर में 10 तक नहीं जा सकता। अगर मुझे 10 लेना है तो मुझे 2 डिस्प्लेस लेने हैं। 2 डिस्प्लेस में फिर मैं यहाँ पे उसमें 2 डिस्प्लेस के लिए मुझे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये मेरे पास 1 है। ठीक है, और ये मेरे पास 0। ठीक है, तो 10 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स के डिस्प्लेस के लिए हम लोगों के पास बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ठीक है, मगर बाइनरी कोडेड डेसिमल पे 9 से ऊपर डिजिट इनवैलिड होगा। वो उसको हम कैसे डील करेंगे ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें डेसिमल 0 BCD के अंदर 000 है। BCD 4 बिट का कोड है, 4 बिट का बाइनरी कोड है। ठीक है, अप टू 9 तक। 1 जो है वो 001 है, 2 जो है वो 0010 है, 3। अब 9 से आगे मेरे पास अगर देखें तो 9 मेरे पास 1101 आ रहा है। 9 से आगे 10 का कोड पॉसिबल है, मगर BCD के अंदर हम उसको इनवैलिड कोड कंसीडर करेंगे। 10 के बाद 9 के बाद अगेन मेरे पास 10123 ही आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। BCD कोड यहाँ पे खत्म हो जाता है 9 से आगे। 9 से आगे BCD कोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट के लिए आपको फिर 10111213 अप टू 99 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल है। इसकी अगर मैं बाइनरी कोडेड डेसिमल की एडिशन देखूं तो मेरे पास 23 प्लस 45 कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 की बाइनरी लिखी, 3 की बाइनरी लिखी, 4 की बाइनरी लिखी और 5 की बाइनरी लिखी। इनको आपस में ऐड कर दिए 1101। ठीक है, 11 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ कैरी हो गया 11 अगेन 01, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया 11 फिर 01 और 001 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1, तो 100। ये मेरे पास आ गई है 8 की बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। तो 0110 मेरे पास आ गया 1248। ठीक है, 4 प्लस 2 6 की बाइनरी 68। ठीक है, दोनों डिजिट्स 9 से कम है, बिल्कुल वैलिड रिजल्ट है आपके पास, ये बिल्कुल ठीक रिजल्ट है। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं 23 प्लस 49। इस केस में अगर आप देखो तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐड होके 0110 और 1100। इसमें ये मेरे पास 6 की बाइनरी है। ठीक है, और ये मेरे पास किसकी बाइनरी आ रही है 12 की। अब 12
के मसला ये है कि 12 इज अ इलीगल बीसीडी नंबर। बीसीडी नंबर के अंदर 12 एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, हम 12 के अंदर +6 ऐड करते हैं। ठीक है, +6 की बाइनरी ऐड करेंगे। जब आप +6 की बाइनरी ऐड करोगे तो 6 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा और ये आपके पास नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। हम करके देखते हैं। जिस तरह 23 + 49 किया तो मेरे पास 0 1 1 0 और 1 1 0 0 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 6 को ऐड किया है। जब मैंने इसको 6 को ऐड अप किया है तो मेरे पास ये आपके पास ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। ये यहाँ पे होगा 0 + 0 0 0 + 1 1, ये 0 + 1 1 आ रहा है, 1 + 1 अगेन 0 1। ठीक है, अब 1 + 1 0 1 और 0 1 + 0 तो 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ से एक कैरी जनरेट होगा जो इधर आएगा। अब 1 + 0 1 1 उसी तरह आ गया, 1 उसी तरह आ गया, 0 आ गया, तो 0 1 1। अब जो मेरे पास आ रहा है 0 1 1 वो 0 0 1 0, तो अब मेरे पास ये रिजल्ट आएगा 7 और ये आ जाएगा 2। तो ये अब एक वैलिड रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ये बाइनरी में 72 है, ये बीसीडी का 72 नहीं है। तो बीसीडी का 72 मेरे पास ये बनता है कि 7 और 2 आए। ठीक है, 23 + 49 72 होता है, तो मेरे पास रिजल्ट बीसीडी के अंदर इसी तरह आना चाहिए कि 7 की बाइनरी 0 1 1 1 है और 2 की बाइनरी 0 0 1 0 है। मगर अगर नॉर्मल आप एडिशन करें तो आपके पास ये चीज आएगी। जो 8 से ऊपर कोई भी 9 से ऊपर कोई भी नंबर मेरे पास आएगा उसके अंदर मैं 6 की बाइनरी ऐड करूंगा। ठीक है, तो खैर इसमें तो 6 आप डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, 18 आएगा। मुझे 6 की बाइनरी ऐड करनी है, तो 12 की बाइनरी मेरे पास अगेन 1 1 0 0 थी। ठीक है, 6 की बाइनरी 0 1 1 0 है। एक दफा फिर देख लें, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 0 1। ठीक है, 1 + 1 अगेन 0 और ये जो 1 कैरी जनरेट होगा ये नेक्स्ट डिजिट के लिए चला जाएगा। अब नेक्स्ट डिजिट में मेरे पास 0 1 1 0 था, तो ये वाला 1 इधर आ गया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट मेरे पास उसके बाद है 1 1 1 0 बन जाएगा। तो ये इस तरह से मैं बीसीडी एडिशन हम परफॉर्म करते हैं। बीसीडी कोड के बाद एक और कोड आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड्स बाइनरी कोड की तरह ही है। ठीक है, मगर ग्रे कोड्स में हम रिस्ट्रिक्शन जो कर देते हैं कि एक नंबर से जब आप दूसरे नंबर के ऊपर जाओगे तो जो बिट चेंज होगा वो एक बिट का ही चेंज होगा। ठीक है, जैसे आप 2 से 3 की तरफ जाते हो या 3 से 4 की तरफ, जब आप 3 से 4 की तरफ हम जाते हैं तो 3 की बाइनरी है 1 1। जब हम 4 की तरफ जाते हैं तो 1 0 0। तो जो बिट चेंज है यहाँ पे वो 3 बिट का है कि 2 1 से 0 हो रही है और एक जो है वो 0 से 1 हो रही है। जो ग्रे कोड है उसमें लिमिटेशन ये है कि जब आप 0 1 1 से जाओगे थर्ड तो 1 1 1 की तरफ आओगे। ठीक है, फिर 1 1 0 होगा, फिर 1 0 0 होगा, फिर 1 इस तरह से चलेगा कि जो मेरे पास बिट चेंज है वो एक का ही रहेगा। ठीक है, ये 0 से 1 हुआ है, एक बिट चेंज हुई है। ठीक है, फिर ये 1 से 0 हुआ है, एक बिट चेंज हुई है, ये 1 से 0 हुआ। तो ग्रे कोड जो है वो हमें लिमिट कर देता है कि हम सिर्फ एक बिट को चेंज कर सकते हैं, हम बहुत सारे बिट्स को इकट्ठे चेंज नहीं कर सकते एक जंप में। Electromechanical application of digital system restrict bit change to 1। so electromechanical हमारे पास applications होती हैं digital systems की, वो हमें ये restrict लगा देती है कि हम bit में change सिर्फ एक at a time एक bit को ही change कर सकते हैं, हम दो से ज्यादा bits को change नहीं कर सकते। इसकी जो applications है वो shaft encoders हैं और braking systems आ गए हैं हमारे पास, जो ABS वगैरह braking systems है, डिजिटल ब्रेकिंग सिस्टम है, वो इसके करते हैं। अच्छा, अनवेटेड कोड है ये। ग्रे कोड का कोई वेट नहीं है, जिस तरह बाइनरी का वेट 2 है, डेसिमल का 60, डेसिमल का 10 है, ऑक्टल का 8 है और हेक्साडेसिमल का 16 है। ग्रे कोड का कोई वेट नहीं है, ये अनवेटेड कोड है।
इसकी एग्जांपल देख लें। अच्छा जी, 0 के लिए सेम है, 1 के लिए सेम है। अब 2 के लिए यहाँ पे जो बिट चेंज है वो ये 1 हो रहा है, यहाँ पे बिट्स 2 चेंज हो रही है, ये 1 से 0 हो रही है, ये 0 से 1 हो रही है। यहाँ पे मेरे पास 2 बिट्स चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो बिट चेंज है वो सिर्फ एक बिट का है, ये वाला, ठीक है। अगेन 3 पे जाए, 3 में फिर ये वाली बिट चेंज हुई है, बाकी बिट चेंज नहीं हुई, इसमें ये वाली चेंज हुई है, ठीक है, 0 1 1 आ रहा है। अब 4 पे जाए, 4 पे इसमें आए तो सिर्फ ये वाली बिट चेंज हुई है, जबकि इसमें ये भी चेंज हुई है, ये भी चेंज हुई है, ये भी चेंज हुई है। बाइनरी में मेरे पास 3 बिट्स का चेंज आ रहा है, जबकि ग्रे कोड में सिर्फ एक बिट का चेंज आ रहा है। नेक्स्ट 5 पे जाए तो ये वाली बिट चेंज हो रही है, 6 पे जाए तो ये आ रहा है, 7 पे जाए तो ये वाली चेंज हो रही है। तो जो ग्रे कोड है वो हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हमने सिर्फ एक बिट ही चेंज करनी है। तो ये ग्रे कोड्स हैं, ये बाइनरी कोड्स हैं और ये उनकी डेसिमल वैल्यूज हैं। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कि जैसे हमें एक सीडी के ऊपर डेटा स्टोरेज करनी होती है, ठीक है, तो मेरे पास एक हेड मूव कर रहा है, एक उसमें उसमें सर्कल में, फिर नेक्स्ट सर्कल में आ रहा है, फिर नेक्स्ट सर्कल में आ रहा है। बाइनरी के केस में देखें तो हेड को बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है। जैसे इस केस में आए तो पहले वो इधर जाके राइट करेगा, इधर जाके राइट करेगा, इधर वो सेम रहेगा, फिर इधर जाके राइट करेगा, इधर जाके राइट करेगा, इधर, यानी कि हर सर्कल में उसको नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा है वैल्यू के लिए। जबकि आप ग्रे कोड्स में आए देखें तो हेड की पोजीशन एक सर्कल के लिए वही रहेगी, ठीक है, अगर इस ड्यूरेशन में वो है तो सिर्फ ये इस पे रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर के अंदर वो जंप कर रहा है, ठीक है, हेड जा रहा है, तो वो सिर्फ इसको राइट करेगा, बाकी दो सेम, सिर्फ इसको इस वाले सॉरी इसको चेंज करेगा, बाकी दो सेम रहेंगे। तो हेड को ये नहीं है कि इस सेक्टर में उधर भी मूव करना है, इधर भी मूव करना है। हार्ड डिस्क के ऊपर या सीडी के ऊपर जब डेटा राइट होता है ना, तो वो ग्रे कोड्स को ही इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ग्रे कोड को इंप्लीमेंट करने हमारे पास फास्टर है ये, बजाय इसके कि हम बाइनरी कोड्स को यूज करें, ठीक है। अगेन नेक्स्ट सेक्टर में हेड मूव हुआ है, उसने सिर्फ इसको चेंज किया है, बाकी आपके पास सेम है डेटा, सीक्वेंस डेटा है ना, तो वो एक ही चेंज होगा। अब नेक्स्ट सेक्टर में गए, सिर्फ ये वाला चेंज किया है, बाकी ये दो आपके पास सेम है, ठीक है, सेक्टर्स में चेंज नहीं हो रहा। उससे नेक्स्ट सेक्टर में जा रहे हैं तो ये वाला चेंज कर रहा है। ये नहीं है कि इस एक सेक्टर में हेड को दो दफा मूवमेंट करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे, इधर भी राइट करना है, इधर भी राइट करना है, जिस तरह बाइनरी के केस में हुआ था, ठीक है। तो ग्रे कोड्स की इस तरह नंबरस एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में, शाफ्ट एनकोडर्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, वो हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे एक जो आपके पास एलईडी रिदमिक एलईडीज होती है, उसमें भी हम ग्रे कोड्स की इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ताकि हमारे पास बार बार जो चेंज हो एलईडीज की ब्लिंकिंग का, वो एट अ टाइम सिर्फ एक का फर्क आए, ठीक है। तो उससे आप जो बाइनरी इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं बजाय इसके। इसके अलावा हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कोड्स आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स वो कोड्स होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स जो सिस्टम में रिप्रेजेंट होते हैं, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो आस्की का स्टैंडर्ड है। आस्की 7 बिट कोड होता है। अब ये जो 7 बिट का कोड है, इसमें हमारे पास जो यूनिक जो वैल्यूज आ सकते हैं वो 2⁻7 तक आ सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 to 8 यूनिक वैल्यूज आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और वो 1 to 8 जो यूनिक वैल्यूज हैं वो डिफरेंट चीजों के लिए हुई है, ठीक है। 0 to 9 आस्की कैरेक्टर्स जो है वो 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9 के लिए, ठीक है, ये आस्की में आ जाते हैं। इसी तरह 26 लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, 26 अपर केस कैरेक्टर्स हैं, 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, इसके अलावा पंक्चुएशन और सिंबल्स वगैरह, ये वो कैरेक्टर वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनके लिए हमारे पास ASCII कोड्स हैं। ASCII कोड्स आपको पता है कि आपके पास 1 to 7 ASCII कोड्स हैं। अब 1 to 7 में मेरे ख्याल 65 जो है वो स्मॉल एज को रिप्रेजेंट कर रही होती है,
ऊपर उसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं, पंक्चुएशन, मुख्तलिफ उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की कोड्स को हम अल्फान्यूमेरिक कोड्स कहते हैं। इसके अलावा मेरे पास इसके बाद एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट कोड आया था। ठीक है, एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट कोड में मेरे पास 1 to 8 ग्राफिक कैरेक्टर्स और ऐड अप हो गए थे। ठीक है, 2⁻7 आपके पास 1 to 8 है, 2⁻8 जो है तो आपके पास 256 है। 256 और 1 to 8 के दरमियान में 1 to 8 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये एडिशनल 1 to 8 ग्राफिक कैरेक्टर्स ऐड हुए थे ASCII 2 में। ठीक है, पहले हमारे पास ASCII आया था अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, फिर आपके पास ASCII 8 बिट आया। 8 बिट में जो है वो 1 to 8 एडिशनल ग्राफिक कैरेक्टर थे। इसके अलावा हमारे पास यूनिकोड है। यूनिकोड जो है वो 16 बिट का कोड है, यानी कि यूनिकोड के अंदर आप और भी ज्यादा ग्राफिक सिंबल्स को ऐड रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि आप ASCII में नहीं कर सकते हो। अब ASCII कोड्स की एग्जांपल देख लें। ठीक है, 0 to 9 नंबर जो है, 0 की ASCII देख लें ये है, अप टू 9 की ASCII ये है। 30 हेक्साडेसिमल है, 39 तक बनता है। इसी तरह A to Z जो है, मैंने आपको कहा था कि 61 हेक्साडेसिमल से 7A हेक्साडेसिमल तक आ रहा है। कैपिटल A to Z जो है आपके पास 41 हेक्साडेसिमल से 5AH तक आ रहा है। कंट्रोल सिंबल जो है वो 0H से 1FH तक आ रहे हैं। तो ये ASCII कोड्स असाइन हुए हैं इन कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, हम इन कैरेक्टर्स को ASCII कोड्स को अगर आप देखें तो ASCII कोड का पूरा मेरे पास एक हम लोगों के पास एक नेट पे चार्ट अवेलेबल है। उस पर आपको एक तरफ कैरेक्टर आ रहा होगा, आगे उसका ASCII कोड नजर आ रहा होगा। तो अब ASCII कोड्स के बाद हम आते हैं एरर डिटेक्शन पे। आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि जो डिजिटल सिस्टम था वो बहुत रिलायबल है। रिलायबल इसलिए कि अगर ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान कोई एरर आता है तो हम डिजिटल सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है, ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। जो एडवांस एल्गोरिथम्स हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के, वो उस एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। हम एक सिंपल से एरर डिटेक्शन कोड की तरफ आते हैं, पैरिटी बिट। अब पैरिटी बिट में ये होता है, पैरिटी बिट में इवन पैरिटी भी होती है और ऑड पैरिटी भी होती है। अब आप जो सेट करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इवन पैरिटी रख रहे हो या आप ऑड पैरिटी रख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, ये 100101110 का। ठीक है, अब ये थोड़ा मुझे तंग कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट पैरिटी की ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब पैरिटी बिट अगर मैं विथ ऑड पैरिटी चल रहा हूं तो जब मेरे पास नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो मैं पैरिटी बिट को 1 कर दूंगा, और जब नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे इसके अंदर तो मैं पैरिटी बिट को 0 कर दूंगा। तो हम ऑड पैरिटी की एग्जांपल देखते हैं। इवन पैरिटी की एग्जांपल आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ एक चेंज करना है। अच्छा, अब ऑड पैरिटी के साथ मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ वंस काउंट किए, 1 2 3 4, 4 वंस हैं तो मैंने पैरिटी बिट को 1 कर दिया। जब पैरिटी बिट 1 होगी अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे पास ऑड है। ठीक है, इसलिए इसको हम ऑड पैरिटी कह रहे हैं कि विथ ऑड पैरिटी आ रही है। अब मैंने ये मैसेज ट्रांसमिट किया और मेरे पास जो रिसीव मैसेज हो रहा है वो ये है। अब पैरिटी बिट के अंदर 1 है तो मुझे पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, जबकि इसमें अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 तो नंबर ऑफ वंस मेरे पास 5 आ रहे हैं। ठीक है, पैरिटी बिट और 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ वंस भी मेरे पास ऑड है और पैरिटी बिट भी ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कहीं ना कहीं एक बिट का एरर आ गया है। ठीक है, तो हमें मैसेज दोबारा कहते हैं कि एरर मैसेज रिसीव हुआ, आप मैसेज दोबारा भेज दो। अब जो
और पैरिटी एरर डिटेक्शन टेक्निक है, इसमें सिर्फ आप एक बिट का एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा बिट का एरर आ रहा है तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि ये बहुत बेसिक एल्गोरिथम है। अब तो बहुत एडवांस एल्गोरिथम्स हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं। इन केस अगर 2 बिट का एरर आ रहा है, मेरे पास पैरिटी बिट 1 है, ठीक है। पैरिटी बिट 1 का मतलब ये है कि मैं मेरे पास जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन होने चाहिए, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ वंस मेरे पास 4 है, इवन वंस है। मेरे हिसाब से अगर मैं पैरिटी बिट के हिसाब से चलूं तो नंबर ऑफ वंस इवन है, तो ये मैसेज मेरे पास ठीक है। हालांकि ये गलत मैसेज है, तो इसका मतलब ये है कि पैरिटी बिट जो है वो सिर्फ एक बिट का एरर डिटेक्ट कर सकती है, 2 बिट के एरर को वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगी। मैं गलत मैसेज को ठीक एज्यूम कर दूंगा, ठीक है। नंबर वन ऑड, सो नो एरर इंडिकेटेड। 4 है तो पैरिटी बिट के 1 को मिला के आपके पास जो 1 आ रहा है वो ऑड आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें एरर इंडिकेट नहीं हो रहा, मगर एरर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब 3 बिट्स में हम एरर चेंज करते हैं। मेरे पास पैरिटी बिट 1 है, हम नंबर ऑफ वन को काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब मुझे ये इसमें इंडिकेट हो रहा है कि एक बिट में एरर है, क्योंकि मेरे पास ऑड वंस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास कोई नंबर ऑफ वंस यहाँ पे इवन होने चाहिए। पैरिटी बिट को मिला के मेरे पास नंबर ऑफ वन ऑड बनते हैं। तो ये डिटेक्ट तो कर रहा है कि कहीं एक बिट का एरर है, मगर एक्चुअल एरर मेरे पास 3 बिट्स का आ रहा है। तो इसकी जो लिमिटेशन है ऑड पैरिटी एरर डिटेक्शन की, वो यही है कि सिर्फ एक बिट का डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऑड पैरिटी चल रहे हैं तो आप नंबर ऑफ वन जब आपके ओरिजिनल मैसेज में इवन होंगे तो पैरिटी बिट आपके पास 1 होगी। अगर नंबर ऑफ वंस मेरे पास यहाँ पे ऑड है, ठीक है, पैरिटी बिट को मैं 0 सेट करूंगा, वो मेरे पास इवन पैरिटी आ। तो इस तरह से हम ये ऑड और इवन पैरिटी रख के आप एरर डिटेक्शन कर सकते हो, मगर जो पैरिटी एरर डिटेक्शन है वो सिर्फ एक बिट का ही एरर डिटेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो रहा है। जब हमारा सेशन होगा तो इंशाल्लाह अब हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन की एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो आपने विद इन द वीक सबमिट करनी होगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आप देख लें चैप्टर 1 में हमने जो बेसिक नंबर सिस्टम्स पढ़ ली है, सारे रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है हमने, कोड्स जो बेसिक थे, एक्सेस कोड, बीसीडी कोड, वो सारे देख लिए। इन लेक्चर से गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम उसको क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे, मगर इनसे गो थ्रू कीजिएगा और अपने तौर पे इनसे प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।